العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور ذہنی آزمائش سیزن 16 اب بڑھتا جا رہا ہے. 8 ٹیمیں سلیکٹ ہو گئی ہیں، مزید 8 ٹیموں کی تلاش ہے، اور پھر اس کے بعد شروع ہو جائیں گے ناک آؤٹ راؤنڈز. آج 2 ٹیمیں ہیں، دور سے آئی ہیں، تیاری کر کے آئی ہیں یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا. دونوں ٹیموں کو منچ پر بلاتے ہیں، ان سے سوال جواب شروع کرتے ہیں. مگر یاد رہے دنیا بھر میں آپ بھی جہاں کہیں ہیں، گھر بیٹھے آپ بھی سوالات کے جوابات دے کر انعامات حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارے انعامات بڑے مبارک اور بڑے پیارے ہوتے ہیں. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی تیار رہیے، کیونکہ آپ سے بھی سوالات ہوں گے اور آپ میں بھی انعامات کی تقسیم ہوگی. آئیے دونوں ٹیموں کو اسٹیج پر بلاتے ہیں. نواں سلسلہ ہے، نویں ٹیم کی تلاش ہے. ایک طرف اٹک ہے، جی ہاں اٹک سے آ رہے ہیں، دوسری طرف جہلم کے اسلامی بھائی ہیں. تشریف لائیے. دائیں طرف اٹک کے اسلامی بھائی ہیں، بائیں طرف جہلم کے اسلامی بھائی ہیں. اس سے پہلے کہ دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کیا جائے، اس 8واں سلسلہ ہمارا ہوا تھا. 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا، ایک ٹیم آگے بڑھی، 2 ٹیم ہم سے جدا ہو گئیں. آئیے اس مقابلے کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور اس سلسلے میں آج پروگرام ہے 3 ٹیموں کے درمیان، پتوکی، حیدرآباد اور نارووال. ان تینوں میں سے ایک ٹیم نے آگے جانا ہے، کیونکہ اب ان کے پاس آخری موقع ہے. ابو لہب اپنے انجام کو کس طرح پہنچا؟ ابو لہب موذی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا. 3 دن تک اس کی لاش پڑی سڑ گئی، اور چوتھے دن مزدوروں نے اس کی لاش دفن کی. جواب درست دے دیا ہے. شب یاد تھی کن دانتوں کی، شبنم کے دمے صبح. شوخان بہاری کے جڑاؤ ہیں کرن پھول. کیا بات ہے، شوخان بہاری کے جڑاؤ ہیں کرن پھول. جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر سے حیدرآباد آگے ہے، یعنی ہر ٹیم کا آخری اسلامی بھائی اس کے کاندھوں پر بڑا بوجھ ہے. اخلاص کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا درازی عمر کے لیے بہتر عمل ہے. صحیح. خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک 6 رجب المرجب کو منایا جاتا ہے. صحیح. دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں. صحیح. جب آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. صحیح. جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے. صحیح. کیا بات ہے، 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے. حیدرآباد والوں نے غلطی نہیں کی ہے جناب. اذکر اللہ. جناب کچھ لوگ جیت کر اشک بار ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہ کر اشک بار ہوتے ہیں. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا حیدرآباد کی ٹیم اگلے راؤنڈ میں پہنچی ہے. آج دائیں طرف اٹک والے ہیں، بائیں طرف جہلم والے ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ، شاید سیزن 15 کا جو فائنل جیتا تھا وہ جہلم ہی کی ٹیم تھی. جی یعنی اپنے ٹائٹل کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں. اسلامی بھائی الگ ہیں، شہر وہی ہے. اب دیکھتے ہیں اس بار جہلم والوں نے کیسی ٹیم تیار کر کے بھیجی ہے. پچھلی بار تو اس ٹیم نے کمال کر دیا تھا، اور بڑا ہی نیک ٹو نیک مقابلہ اسلام آباد میں فائنل ہوا تھا، اور جہلم والے مقابلہ جیت گئے تھے. اب پتہ نہیں کہ اس بار جہلم والے اسلام آباد تک پہنچتے ہیں یا کراچی میں ہی سفر اختتام پذیر ہو جاتا ہے. وقت بتائے گا. اٹک والوں سے گزارش ہے اپنا نام بھی بتائیں گے، اپنے کام بھی بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام احمد رضا اتاری بن عبد الوکیل اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ پنڈی گھیب میں 4th ایئر یعنی درجہ رابعہ کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ. جی میرا نام محمد عمیر حمزہ اتاری بن عبد الخالق اتاری ہے، اور میں بیسیکلی تعلق وا کینٹ سے ہے، اور جامعۃ المدینہ اٹک کے اندر درس نظامی کے 6th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ذوالفقار الدین بن نثار الدین ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان اتار اٹک میں 7th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا تعلق اٹک شہر کے گاؤں سوجنڈا سے ہے. چلیں جناب، اٹک کی ٹیم ہم تک پہنچی ہے. کیسے پہنچی ہے، اس کا آڈیشن کیسا ہوا، کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ
रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले, ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह तआला के किन 3 चीज़ों से दूर रहने का इरशाद फरमाया? हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, नसीहत करने का कहा गया, तो आपने फरमाया कि 3 चीज़ों से दूर रहना, ख्वाहिशात, झगड़े और हाकिम। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले, ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। बेकस के उठाए तेरी रहमत के भरन फूल, है कौन के गिरियाह करे या फातिहा को आए, बेकस के उठाए तेरी रहमत के भरन फूल। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। जी जनाब, अटक के इस्लामी भाई सेलेक्ट होकर तवील सफर करके हमारे मंच की जीनत बने हैं। बाईं तरफ जहलम के इस्लामी भाई हैं, चलते हैं जहलम, देखते हैं वहां ऑडिशन हुआ तो कैसा हुआ, मगर पहले आपके नाम और आपकी कुछ तफसील। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरफराज अली अतारी है और मेरे वालिद साहब का नाम मतलूब हुसैन है और मैं जामिअतुल मदीना में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल बिन मोहम्मद नदीम, मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना झेलम के अंदर दर्जा सालिसा का तालिब इल्म। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अत्तारी बिन मोहम्मद कलीम अत्तारी है, मैं जामिअतुल मदीना मीरपुर में दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ और मेरा बेसिकली ताल्लुक बलोच पैठक ज़िला सुदनूती से है। क्या बात है, बलोचिस्तान से ताल्लुक है, कश्मीर का इलाका, कश्मीर से ताल्लुक है, जहलम से सेलेक्ट हुए हैं। आइए देखते हैं जनाब जहलम का ऑडिशन कैसा हुआ। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 का इस वक्त होने जा रहा है ऑडिशन। इस वक्त मदनी चैनल की टीम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए जेलम में पहुंची है। रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। ये नूर है, ये नूर है, सुनो ये इल्म नूर है, ये नूर है, ये नूर है, सुनो ये इल्म नूर है। न देर कर ये देख नूर का है दर खुला चले। लैलतुल कद्र को पोशीदा रखने में हिकमत क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें लैलतुल कद्र को बताने के लिए आया था, लेकिन 2 आदमी झगड़ रहे थे जिसकी वजह से लैलतुल कद्र की तायीन जो इसको उठा लिया गया है। अब इसको ताक रातों में तलाश करो, इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है। कैफ के पर जहाँ जले कोई बताए क्या कि यूं, पूछते क्या हो अर्श पर कि यूं गए मुस्तफ़ा के यूं, कैफ के पर जहाँ जले कोई बताए क्या कि यूं। है वक्त मुझको थाम लो, पुकारता है इल्म ये, है वक्त मुझको थाम लो, पुकारता है इल्म ये, न कहे न फिर जो कल को हसरते मिले कहाँ चले, न कहे न फिर जो कल को हसरते मिले कहाँ चले। चले माशाल्लाह, हमने देखा कि ज़हनी आजमाइश सीजन 16 के लिए जहलम की टीम सेलेक्ट हुई तो कैसे हुई। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है आपसे सवाल करने का। आपसे 2 सवाल करेंगे, एक सवाल आपने मैसेज के जरिए जवाब देना है और एक सवाल का जवाब आपने एप्लीकेशन के जरिए देना है। जो मैसेज के जरिए जवाब देना है उसका सवाल यह है कि मस्जिद आयशा कहाँ है। मस्जिद आयशा जो मशहूर व मारूफ, वैसे तो हो सकता है दुनिया में कई जगह पर इस नाम की मस्जिद होगी, जो मशहूर व मारूफ मस्जिद आयशा है, और एक हिंट दे देता हूँ, इसको मस्जिद तनईम भी कहते हैं। शहर का नाम बताएंगे वो कहाँ है। और दूसरा सवाल जो एप्लीकेशन पे आप जवाब देंगे कि जन्नत में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किस सहाबी की किराअत की आवाज़ सुनी। ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि जन्नत में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किस सहाबी की किराअत की आवाज़ सुनी। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे होंगे। अगर अभी तक आपने ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कीजिए। आपको रोज़ ही वहाँ पर ज़हनी आजमाइश यूँ समझे सवाल जवाब करने का मौका भी मिलता रहेगा, और ये भी आपको क्विज़ एप्लीकेशन के जरिए जो क्वेश्चन होता है लाइव वो भी आप देख सकेंगे। 4 ऑप्शन है, हज़रत हारिसा बिन नोमान, हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत हसान बिन साबित या हज़रत मुआज़ बिन जबल।
रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। इन चारों में से एक सहाबी का जवाब जो जवाब है वो दुरुस्त है। आपने वो जवाब ढूंढना है और हमें फिर अपनी आईडी सेव रखनी है, आखिर में कुरानदाजी करेंगे। अब वक्त हुआ है नाजरीन, आपको बताते हैं आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। आज नए सेगमेंट्स हम लाए हैं। हमने एक आपसे वादा किया था शुरू में कि जैसे जैसे ज़हनी आजमाइश आगे जाता जाएगा हमारे सेगमेंट्स बदलते जाएंगे, इजाफा होता जाएगा, इंशाअल्लाह आपकी दिलचस्पी का सामान भी बढ़ता जाएगा। पहला सेगमेंट है इल्म नूर है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, उम्मत के कश्ती और सितारे। कमाल का सेगमेंट है जिसमें इंशाअल्लाह सहाबा किराम और अहले बैत अतहार का शानदार जिक्र होगा। क्या आया क्या गया ये हमने पिछले हफ्ते अपने ज़हनी आजमाइश में ऐड किया था, इंशाल्लाह आज फिर होगा। एक और सेगमेंट हम लाए हैं फैज़ान फतावा रज़विया। आला हज़रत की शाहकार तसनीफ़ कह लीजिए, आला हज़रत की शानदार काविश है और फतावा की दुनिया का एक शाहकार ये फैज़ान फतावा रज़विया है। फतावा रज़विया है, उसके हमने यूँ समझिए कि अवेयरनेस भी होगी और ये हमारी बोर्ड एक्टिविटी होगी। अगला जो हमारा ऑप्शन है या अगला सेगमेंट है ये भी बिल्कुल न्यू सेगमेंट है, फैज़ान कसीदा बुर्दा शरीफ, शौरा आफाक कसीदा बुर्दा शरीफ। इस बार इंशाल्लाह उसके अशार भी हम सुनेंगे और उसका तर्जमा भी जानेंगे कि इमाम बुसैरी इसमें क्या फरमा रहे हैं। और आखिरी सेगमेंट है सफ़र है मगर अकेले। आइए नाज़रीन इंशाल्लाह चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इल्म नूर है। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब पहला सवाल करेंगे अटक के इस्लामी भाइयों से। एक औरत को नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक पसीना अता हुआ तो उसके सबब उस औरत को क्या फजाइल हासिल हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पसीना अता हुआ तो वो उसे अपने जिस्म पर मला करती थी, जिससे उसके जिस्म से खुशबू आया करती थी और ये खुशबू इतनी ज़्यादा थी उसके घर में फैल जाती, उसके घर को बैतुल मुतय्यबा कहा जाने लगा और ये खुशबू उसकी बाद कई नस्लों तक आती रही। सुभान अल्लाह। ये तो हमने सुना था कि जनाब वो पूरा घर महकने लगा, खुशबुओं वाले घर के साथ मशहूर हो गया, मगर सुभान अल्लाह हम सब की मालूमात में एक और इजाफा हुआ कि कई पुश्त तक यानी उसकी औलाद दर औलाद में भी प्यारे आका के पसीने की जो खुशबू थी वो बाकी रही, गोया उनके जिस्म भी महका करते थे। मेरे आला हजरत कहते हैं ना, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हाजरीन से। पहले ही सवाल के बाद सवाल जहन में आ गया कि इस वाक़े पर भी कि एक खातून को मुबारक पसीना मिला, जिस्म पर मला तो पूरा घर खुशबूदार हो गया। आला हजरत ने इस बात को भी एक शेर में बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया। कौन वो शेर सुनाएंगे? क्या बात है मेरे रजा की, नबी पाक का शानदार मौजज़ा, तो कलम रजा कैसे खामोश हो सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मोहम्मद अरसलान अत्तारी औरंगे टाउन से हाजिर हुआ हूँ। माशाअल्लाह। वो शेर ये है आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का, वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र नहीं चाहे दुल्हन फूल। वल्लाह जो मल जाए, कहते मिल जाए भी है लेकिन मल जाए, मलना है ना। वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। फिर दुल्हन को फूल की जरूरत भी नहीं है, इत्र की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आका का पसीना सबसे ज्यादा खुशबूदार है। जवाब इनका हम दुरुस्त मान रहे हैं। सुभान अल्लाह। जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, वाह वाह वाह। वल्लाह जो मल सुभान अल्लाह। जनाब अब सवाल है जहलम वालों से। हजरत वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाहि तआला ने 71 किताबों में क्या लिखा देखा?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو عقل مبارک عطا فرمائی گئی ہے وہ تمام جہانوں سے اس طرح زیادہ ہے کہ جیسے تمام ریگستانوں کے سامنے ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے. کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے 71 کتابوں میں لکھا دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عقل تمام انسانوں کی عقل سے اس قدر زیادہ ہے جیسے تمام ریگستان کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ. کیا شان ہے میرے آقا کی. اللہ نے کیسا باکمال بنایا. جواب درست دے دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت منادی نے کیا ندا دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منادی نے ندا دی اے لوگو اس نبی علیہ السلام کے حال سے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صفوت آدم، معرفت شیس، خلت ابراہیم، استلام اسماعیل، شکر یعقوب، صبر ایوب، جمال یوسف، آواز داؤد، حکومت سلیمہ، حکمت لقمہ، قوت موسیٰ، بشارت عیسیٰ اور زہد یحییٰ عطا کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے، الفاظ دیکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت منادی نے کیا ندا دی؟ سوال یہ تھا منادی نے یعنی ندا کرنے والے نے، غیب سے آواز یہ آئی، ندا کیا ہوئی کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حال سے واقف ہو جاؤ کہ اللہ پاک نے سے صفوت آدم، معرفت شیس، رکت نو، خلت ابراہیم، استسلام اسماعیل، صبر استلام اسماعیل، صبر ایوب، شکر یعقوب، جمال یوسف، آواز داؤد، حکومت سلیمان، حکمت لقمان، قوت موسیٰ، بشارت عیسیٰ اور زہد یحییٰ عنایت کیا ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں. صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. رحمت عالم تیرے سوا آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مزے کو بھی مزہ آ گیا. کیا بات ہے. جناب جہلم والوں سے سوال ہے. عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ کی کیا حالت ہوا کرتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبد الرحمن بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کے سامنے جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ کی حالت ایسے ہو جاتی جیسے کہ آپ کے جسم سے رنگ کو نچوڑ لیا گیا. ہائے ہائے، ہیبت کا عالم یہ ہوتا، عشق کا عالم یہ ہوتا، رقت کا عالم یہ ہوتا کہ ایسا فیل ہوتا کہ آپ کے جسم سے رنگ کو نچوڑ لیا گیا، رنگ ہی اڑ جایا کرتا تھا اور یہ کیفیت بن جاتی تھی بزرگان دین کی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب نبی پاک کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ کی کیا حالت ہوا کرتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو اس قدر روتے کہ آنکھوں میں آنسو باقی نہ رہتے. ہائے ہائے، اتنا روتے کہ آنکھوں میں آنسو بھی باقی نہ بچتے تھے. کیا بات ہے. اللہ ان بزرگان دین کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. نبی پاک کے ذکر پر ہمیں بھی ایسا شوق نصیب فرمائے. امیر علیہ سنت کا ایک شعر ہے نا، کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی، کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی، آنکھ بھی امنڈ آتی، دل بھی غم سے بھر جاتا. اللہ نبی پاک سے ایسا عشق نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جناب داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں آ کر کیا کہا؟
सिलसिले के हजारों तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारोगा जन्नत रिदवान अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान में आकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको मुबारक हो कि आपको तमाम पैगम्बरों का इल्म इनायत किया गया और आप सबसे ज़्यादा दानिशवर और बहादुर हो। हजरत रिजवान जो कि दारोगाए जन्नत हैं, जन्नत के दरवाजे पर आपकी समझ ले ड्यूटी है, आपने नबी पाक के कान में कहा कि ए मोहम्मद, तुमको बशारत हो कि सब पैगंबरों का इल्म आपको अता किया गया है और आप सबसे ज्यादा दानिशवर और बहादुर हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। तीन सवाल, तीनों के सही जवाब। अब जो सवाल हैं वो ऑप्शन बेस हैं। ऑप्शन पूछेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, विदाउट ऑप्शन, बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। ये भी याद रहे कि ये क्वेश्चंस इनके सिलेबस में शामिल नहीं हैं। अटक वालों से सवाल है, वो कौन सी नमाज थी जिसमें तहवील किबला के लिए वही उतरी? ऑप्शन चाहेंगे तो हम ऑप्शन भी बताएंगे। जोहर की नमाज थी जनाब। 3 ऑप्शन थे, जोहर, असर और मगरिब। इन्होंने कहा जोहर, बगैर ऑप्शन के जवाब दिया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बताइए जन्नतों की तादाद कितनी है? ऑप्शन देना चाहेंगे या बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे? 8, 9 या 10? 3 ऑप्शन हैं, इन 3 में से एक जवाब दुरुस्त है। अब आप सही जवाब देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 10। आपने कहा 10 जन्नतें हैं, जन्नतों की तादाद 8 है। आपसे मिस्टेक हो गई है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। बारी अटक वालों की है। बैतुर रिजवान किस सिने हिजरी में हुई? बैतुर रिजवान किस सिने हिजरी में हुई? जवाब देना चाहें या ऑप्शन लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैतुर रिजवान 6 सन हिजरी में हुई थी। ऑप्शन ना लेकर जवाब देना बड़ा रिस्की होता है क्योंकि कोई नंबर नहीं मिलता गलत जवाब देने पर। 3 ऑप्शंस मेरे पास थे, 6 सिने हिजरी, 9 सिने हिजरी या 10 सिने हिजरी। बैतुर रिजवान सुलह हुदैबिया के मौके पर हुई थी और सुलह हुदैबिया 6 हिजरी को हुई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। जेलम वालों की बारी है। इस्लाम में नमाज ईद उल फित्र की जमात पहली मर्तबा कब हुई? चाहे तो ऑप्शन लें और चाहे तो बगैर ऑप्शन के जवाब दें। ईद उल फित्र की नमाज बाजमात सबसे पहले कब हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नमाज ईद उल फित्र 2 हिजरी को अदा की गई। विदाउट ऑप्शन जवाब दिया है। मेरे पास 3 ऑप्शन थे, 2 हिजरी, 4 हिजरी या 6 हिजरी। कहीं पढ़ा था ऐसे ही कह दिया है? याद आ रहा है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। जेलम वाले और अटक वालों ने अपने जवाबात दिए। नंबर्स इनके आपके सामने हैं। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। जी, 8 नंबर है जेहलम वालों के, 10 नंबर हैं अटक वालों के। अब अगला सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क के बोल। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब 5-5 अशार पूछने हैं और दोनों टीमों से सुनना है। पहला शेर है, कमाल का शेर है। जुगनू चमके पत्ता खड़के, मुझ तन्हा का दिल धड़के। जुगनू चमके पत्ता खड़के, मुझ तन्हा का दिल धड़के। डर समझाए कोई पौन है या अगिया बेताली है। डर समझाए कोई पवन है या अगिया बेताली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बादल गरजे बिजली तड़पे, धक से कलेजा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बन में घटा की भयानक सूरत कैसी काली काली है। बन यानी जंगल में, बन में घटा की भयानक सूरत कैसी काली काली है। ये वही कलाम है नाजरीन। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। आला हजरत ने वो नक्शा खींचा है कि बंदा अकेला हो और बादल भी गरज रहे हों और जनाब कोई पत्ता भी खड़क रहा हो, दिल भी धड़क रहा हो। ऐसी कैफियत है। अब इसको अगर इमेजिन करें तो आला हजरत आज के दौर के मुताबिक हमें समझा रहे हैं कि कहीं ईमान के डाकू घूम रहे हैं, कहीं अकीदे पर अटैक करने वाले घूम रहे हैं, कहीं हराम रोजी लेकर लोग घूम रहे हैं। हमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं बुराइयों में और हमें ईमान सलामत लेकर ये जिंदगी का जो जंगल है ये पार करना है। बहुत खूबसूरत अंदाज में आला हजरत ने समझाया है। और एक जगह फरमाते हैं ना कि सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। तू कहता है नींद है मीठी,
تیری مت ہی نرالی ہے. جب تیرے پاس ایمان کا سونا ہے تو اب یہاں غفلت سے نہیں سونا بلکہ اس کو سنبھالنا ہے. اللہ ہم سب کو اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا نصیب فرمائے. اب کریں گے اگلا سوال. کیا خوبصورت شعر ہے, انشاءاللہ نعت خواں بھی ہمیں سنائیں گے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. جواب درست دے دیا ہے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. جسم میں جان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ شرف کے قطعہ ہیں نسبتیں, وہ کرم کے سب سے قریب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شرف کے قطع نسبتیں, وہ کرم کے سب سے قریب ہیں. کوئی کہہ دو یاس و امید سے, وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں. ہائے ہائے, کوئی کہہ دو یاس و امید سے, وہ کہیں نہیں کہ کہاں نہیں. جواب درست دے دیا ہے. گناہ مغفور دل روشن خن کا آنکھیں جگر ٹھنڈا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا. تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا. تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا. جواب درست دے دیا ہے. جنا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت. ہائے ہائے, چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. جواب درست دے دیا ہے. نارا کی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. نارا کی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت. یہ شعر بھی ختم نبوت پر کیا کمال کا شعر ہے کہ نبی پاک جب دنیا میں تشریف لائیں. اب اس کو ایک باغ سے شاعر نے بڑی پیاری مثال دی, اعلیٰ حضرت کا غالباً شعر ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. ایسا گلاب کھلا کہ اب کسی کا حسن جو ہے نا اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, سبھی ماند پڑ گئے ہیں. تو اب کیسے کوئی جو ہے وہ غنچہ چٹکتا باغ رسالت میں. اب کسی اور نبی کی حاجت ہی نہیں, نہ کسی نبی نے آنا ہے. ہمارے آقا تشریف لائے اور بات پوری ہو گئی ہے, اور نبی پاک ہی سب سے آخری نبی ہیں. سبحان اللہ. اب باری ہے اٹک والوں کی. دیکھا تھا خواب خار حرم اندلیب نے. کھٹکا کیا آنکھ میں شب بھر خیال گل. کھٹکا کیا ہے آنکھ میں شب بھر خیال گل. جواب درست دے دیا ہے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. جواب درست دے دیا ہے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. کیجے رضا کو حشر سبحان اللہ. جناب اب
अब बारी फिर अटक वालों की है। पनाहे दामने दश्ते हरम में चैन आता। पनाह दामने दश्ते हरम में चैन आता, न सब्र दिल को गजाले रमीदा होना। क्या बात है, न सब्र दिल को गजाले रमीदा होना था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये कैसे खुलता कि उनके सिवा शफी नहीं। अबस ना औरों के आगे तपीदा होना था। अबस न औरों के आगे तपीदा होना था। जो मैं इस शेर का मतलब समझाऊं, बहरहाल आला हजरत की तो क्या शान है, यानी क्या खूबसूरत बात समझ आ रही है इससे। ये कैसे खुलता, ये कैसे पता चलता कि नबी पाक के सिवा शफी कोई नहीं है, आपके सिवा शफात किसी और ने नहीं करनी है। कहते हैं ना, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। तो आला हजरत कहते हैं ये कैसे पता चलता। जब तक दूसरे नबियों के पास गए नहीं, सबने कहा इज़हबू इला गैरी, इधर से कहीं और जाओ, किसी और के पास जाओ। तो पूरा महशर घूम कर जब नबी पाक के पास आएगा तो फिर पता चलेगा कि शफी कौन है। अब जरा समझिए शेर को, क्या कहते हैं, ये कैसे खुलता कि उनके सिवा शफी नहीं, अबस न औरों के आगे तपीदा होना था। सबके पास गए, बहुत बड़ा ट्रैवल किया और जनाब परेशान भी हुए, मगर जब आका के पास पहुंचे और आका ने क्या कहा, अना लहा होगा, अना साहिबुकुम। आलादत एक और जगह यही अंदाज कहते हैं ना, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये कैसे खुलता के उनके सिवा शफी नहीं। चलिए इसी कलाम का एक शेर है माशाअल्लाह जी, बख्ता सुन। पहले जरा मैं इनसे सवाल कर लूं, अगर आप भी तैयार रहिएगा। ठीक है। रजा जो दिल को बनाना था जलवा गाहे हबीब। क्या खूबसूरत शेर कहते हैं, इसी कलाम का मक्ता है। मैंने कई बार कहा है कि आला हजरत का जो मक्ता होता है ना, वो तो कहते हैं ना इत्र होता है। सुभान अल्लाह। रजा जो दिल को बनाना था जलवा गाहे हबीब। तो प्यारे खुद कसीदा होना था। नहीं, थोड़ा सा ठीक करें शेर। तो प्यारे कैदे कसीदा होना था। नहीं, फिर भी ठीक नहीं है। चलें और किसी से कोशिश की कि आप पूरा पढ़ लें। तो प्यारे कहदे खुदी से रहीदा होना था। हाँ, आला हज़रत अपने आप को समझाते हैं, रजा अगर दिल में नबी पाक के जलवे बसाने हैं ना, तो ये खुदी है ना, जो मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, तो इससे अपने आप को आज़ाद करना होगा। रहीदा यानी उससे अपने आप को आज़ाद करना होगा। कैदे खुदी से अपने आप को, अपने दिल को तकब्बुर की, हुब्बे जा की कैद से रिहा करो और फिर आजजी का पैकर बन जाओ, तो दिल तुम्हारा भी जलवा गाहे हबीब बन जाएगा। रजा जो दिल को बनाना था जलवा गाहे हबीब, तो प्यारे कैदे खुदी से रहीदा होना था। अल्लाह हमारे दिलों में भी हमें आजजी नसीब फरमाए और इस दिल को नबी पाक के जलवों से जगमगा दे। रजा जो दिल पुरानी तर्ज याद दिला दी और हाजी मुश्ताक याद दिला दिया आपने। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत ये तर्ज पढ़ते थे वो। चलें अज़्ज़ा वजल 40 फरामीन मुस्तफ़ा और इनकी तौज़ी पर मुश्तमिल किताब फैज़ान चहल हदीस। इसमें 40 अहादीस हैं, नीयत की अहमियत, कामिल ईमान वाला कौन, और बुखार की बरकतें भी होती हैं, ये भी है और भी बहुत कुछ। ये रिसाला इनको तोहफे में दिया जा रहा है। माशाअल्लाह 40 अहादीस हैं इसमें, ये रिसाले को हासिल कीजिए, बरकतें लूटें। चलें जनाब एक और शेर सुनते हैं। आसान पूछूं या मुश्किल पूछूं? ये जो आपने भी कहा ना कि याद दिला दिए किसी एक कलाम की, उस कलाम से शेर पूछ लें। हाँ, मेरे ज़हन में भी आ रहा था, मुझे तर्ज इतना मजा आ रहा था कि मैंने कहा वही कलाम उसी तर्ज में सुने। चलिए उसी कलाम का पूछ लेते हैं। अभी अभी तो चमन में थे चह चहे नागाह,
थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कमाल का शेर है। चलें। अभी अभी तो चमन में ते चह चहे नागा, ये दर्द कैसा उठा जिसने जी निढाल किया। है ये दर्द कैसा उठा जिसने जी निढाल किया। ये आला हज़रत का वो कलाम है जिसमें आला हज़रत ने मदीने से वापसी पर, मदीने की जुदाई पर जो बड़ा कमाल का कलाम लिखा है। खराब हाल किया दिल को पुरमलाल किया, तुम्हारे कूचे से रुखसत किया निहाल किया। वो क्या खूबसूरत तख़य्युल है कि अभी अभी तो चमन में मैं चहचहे सुन रहा था, फूलों की महक थी, चिड़ियों की एक खूबसूरत आवाज़ें थीं, और अब ये दर्द कैसा उठा कि मदीने से वापस जाना है, अब घर जाना है। अब उसने जी को निढाल कर दिया, वो सारा सुरूर, वो सारी कैफियत ख़त्म हो गई है। अल्लाह मदीने पाक बार बार जाना भी नसीब फरमाए और मदीने का सोज भी, मदीने का इश्क भी नसीब फरमाए। अभी अभी मदीना का एक और शेर सुना दें। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। बदरी मुन्ने ने हाथ उठाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हमजा रज़ा है। जी बेटा। गफलते खास रुखसते काफिला, रुखसते काफिला का शो गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए। क्या बात है, क्या बात है। छोटे से मुन्ने को भी याद है। और कितना प्यारा शेर है कि आप तख़य्युल करें कि काफिला तैयार है और काफिला कह रहा है चले भाई जल्दी चले, मदीने से बाहर जाना है। आरज़त कहते हैं आका के कदमों में सोने दो ना, क्यों मदीना छोड़ने की बातें करते हो, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। अल्लाह मदीना हमारा मस्कन बना दे, मदीना पाक ही हमारा मदफन बना दे। रुखसत काफिला माशाअल्लाह। चले कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। हुजूर हम भी हैं इंशाअल्लाह। निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं। अभी कुछ नाज़रीन को ले लेते हैं। जी नाज़रीन कॉल कीजिए। जी मेरा नाम अब्दुल वाहिद अत्तारी है। मैं जिला चकवाल के गांव लाड़ी काका से बात कर रहा हूँ। मैं टीम अतक के साथ हूँ। हमारे लिए मदीने की दुआ कर दे। अल्लाह आपको हम सबको मदीने की, मक्के की बार बार हाज़िरी अता फरमाए। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद मान है। मेरा नाम शादम बेग है। हम चकवाल से बात कर रहे हैं। मैं टीम अटक के साथ हूँ। मैं टीम जेलम के साथ हूँ। आप हमारे लिए मदीने की दुआ कर दे। आप चकवाल कब आएंगे? ये बड़ा अच्छा होता है कि घर में अगर दो अफराद हैं तो दोनों एक एक टीम चूज़ कर लें, तो इससे आपके घर में भी एक खूबसूरत कंपटीशन क्रिएट होगा। और अल्लाह पाक आप सबको बार बार मक्के मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। ज़िंदगी रही तो कभी चकवाल भी आना होगा, जिसे ये सब आप फरमा रहे थे। अच्छा, आपने भी माशाल्लाह हाजी मुश्ताक के हवाले से तस्करा किया। यकीनन दावत इस्लामी के वन ऑफ द बेस्ट नात खानों में से हैं और पुरानी यादें ताज़ा हुई, तो एक पुरानी याद मैं और आपसे ताज़ा करवाना चाह रहा हूँ और आप ही वो बताएंगे कि एक छोटे बच्चे ने अमीर अहले सुन्नत से चल मदीना की ख्वाहिश का इजहार किया था और अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने उन्हें कहा था मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, वो आप शेर सुना दें। तो फिर वो पता नहीं सुना पाए। फिर अमीर उसने दूसरा शेर दिया, तो मैं वो दोनों शेर आपसे सुनना चाहूँगा
और फिर मैं बताऊंगा कि वो बच्चा कौन था। वैसे तो ये बात कल टेलीथॉन जिन्होंने देखी है उनको पता चल गई होगी, और चले मैं शेर बता देता हूँ। उस बच्चे की उम्र मेरा ख्याल है उस वक्त गालिबन 15 साल होगी या 16 साल होगी। तो उसके सामने ही मदीने शरीफ का एक काफिला तरतीब पा रहा था और चल मदीना का काफिला तरतीब पा रहा था। तो उसने जाकर रिक्वेस्ट की कि आप सबको मदीने ले जा रहे हैं, मुझे भी ले जाएं। अमीर अहले सुन्नत कैफियत में थे, तो आपने फरमाया कि ये मैं शेर पढ़ता हूँ, ये शेर आप दोबारा पढ़ दें तो आप चल मदीना। वाह। वो शेर उस बच्चे के लिए तो वाकई बहुत मुश्किल था। वो शेर ये था, ए आह मेरे दिल की लगी और न बुझती, ए आह मेरे दिल की लगी और न बुझती, क्यों तूने धुआं सीनाए सोजा से निकाला। वो उस वक्त उसके सर के ऊपर से गुजर गया शेर, तो वो नहीं सुना सका। तो अमीर ने फरमाया अच्छा नहीं याद है? का नहीं याद है। एक और शेर पढ़ता हूँ, चलो वो सुना दो फिर चल मदीना। अब वो शेर क्या था, हमने ठोकर नहीं खाई जो पड़े हैं दर पर, हमने ठोकर नहीं खाई जो पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। शेर दोनों बड़े कमाल के हैं। वो बच्चा उस वक्त भी वो शेर नहीं सुना सका, मगर आज तक उसके बाद वो कभी भूला नहीं है वो शेर। तो ये एक कैफियत थी बुजुर्गों की, और उन्होंने एक मदनी चैनल के नाज़रीन, वो बच्चा कोई और नहीं था, हमारे रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई खुद थे माशाअल्लाह। फिर अब्दुल हबीब भाई, ये फिर आपकी अमीर सुन्नत का मदीना शरीफ हाजिरी का सबब फिर कैसे बना? उस वक्त तो ना बन सका, लेकिन बाद में कैसे बना? उस वक्त तो वो काफिला हमें रोता हुआ छोड़कर रवाना हो गया और हाजिरी नहीं हो सकी। ये तो समझे कि 2018 में जब अमीर अहले सुन्नत का हज का सफ़र हुआ, तो जहाँ दीगर आशिकान रसूल को सादत मिली वहाँ मुझ पर भी करम हुआ और अमीर अहले सुन्नत अपने साथ ले गए। तो ज़िंदगी में पहली बार जो अमीर अहले सुन्नत के साथ चल मदीना के तौर पर मक्के मदीने की हाज़िरी का शरफ़ मिला वो 2018 में मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात। अल्लाह पाक बार बार ये शरफ़ हमें नसीब फरमाए। चले नाज़रीन, एक बार फिर देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जी। हजारों तलबगार थे, सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे। जनाब, बहुत खूबसूरत सेगमेंट है उम्मत की कश्ती और सितारे। नाज़रीन, ये दो हदीसों का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन इस सेगमेंट का नाम रखा गया है। उम्मत की कश्ती कौन है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि मेरी आल जो है, मेरी जो नबी पाक फरमाते हैं, मेरी अहले बैत उम्मत के लिए कश्ती नूह की मानिंद है, जो इसमें सवार हो जाएगा वो पार हो जाएगा। तो गोया उम्मत की कश्ती कौन है? मेरे आका की आल, अहले बैत अतहार। और आका फरमाते हैं सहाबा के बारे में, असहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से जिनकी भी इताअत करोगे, जिनकी भी पैरवी करोगे, हिदायत पा जाओगे। तो उम्मत के सितारे कौन हैं? वो सहाबा हैं। और मेरे रज़ा क्या कमाल की बात लिखते हैं कि दरिया पार करने के लिए कश्ती भी चाहिए, सितारे रास्ता बताने वाले भी चाहिए। तो अहले सुन्नत का बेड़ा पार है, क्योंकि कश्ती अहले बैत है, सितारे सहाबा हैं। अहले बैत से भी इन्हें प्यार है, सहाबा से भी इन्हें प्यार है, और हम सबका बेड़ा पाला। अब इस सेगमेंट में भी हमने एक बड़ी खूबसूरत तरतीब का लिहाज रखा है कि आज ये सेगमेंट का पहला प्रोग्राम है। तो सबसे अफजल, अफदलुल बशर बादल अंबिया, यानी अंबिया के बाद सबसे अफजल अगर कोई हस्ती हैं तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जो यारे गार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं। तो आज पहले सेगमेंट में सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला के बारे में हम जानेंगे, सवाल करेंगे अटक वालों से। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला का नाम, लकब, कुन्नियत बताएं, नीज आप कब और कहां पैदा हुए। एक ही सवाल में कई सवाल हैं, ये जवाब देंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक और बात नाज़रीन आपसे कर लूं कि अगर मैं आपसे भी पूछूं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नाम क्या है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे अबू बकर। याद रहे, उनका नाम अबू बकर नहीं है। अब जरा सुनिएगा जवाब क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु का नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर, लक़ब सिद्दीक व अतीक हैं, और आप रदियल्लाहु तआला अन्हु
आम उल फील के 2 साल चंद माह बाद मक्का मुकरमा में पैदा क्या बात है। आपका नाम अब्दुल्ला है, कुन्नियत अबू बकर है, लक़ब सिद्दीक़ व अतीक हैं। आप आमुल फील यानी जो हाथियों वाला साल था, जो हाथियों का वाक़या हुआ, उसके 2 साल और चंद माह बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। इसका मतलब आपकी और नबी पाक की उम्र में ऑलमोस्ट 2 साल का फर्क था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस्लाम के पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के चंद फ़ज़ाइल और कमालात बताएं। बल्कि मैं आपसे पहले एक और सवाल कर लेता हूं कि इस्लाम के पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का मुबारक हुलिया कैसा था। इस सवाल का जवाब आप दें। कैसे दिखने में आए हाय नबी पाक के करीबी साथी, आपका हुलिया मुबारक क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु के रुखसार कम गोश्त वाले सफ़ेद रंग और हाथ की पुश्त की रगें वाज़े नजर आती थी। जिस्म मुबारक कैसा था? और जिस्म मुबारक पतला था, दुबला। जी, जिस्म दुबला था, आपका रंग सफेद था, रुखसार कम गोश्त वाले थे, चेहरा अक़दस और हाथ के पुश्त की रगें वाज़े नजर आती थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के चंद फ़ज़ाइल और कमालात सुनाइए। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगीना चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बाद तमाम मखलूक से अफजल है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में 17 नमाज़ें पढ़ाने का शर्फ भी मिला है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद भी सहाबी, आपके बेटे भी सहाबी, आपके वालिद भी सहाबी, आपके पोते पोतिया और नवासे सब सहाबी है। और ये ऐसा एजाज़ है कि आपके अलावा किसी और को नहीं मिला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप भी सहाबी, आपके वालिद भी सहाबी, बेटे बेटियां पोते और नवासे भी शर्फ सहाबियत से सरफराज हुए। आप 4 नस्लों के सहाबी कहलाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। आप अंबिया और मुरसलीन मलाइका और हामिलीन अर्श के बाद तमाम मखलूकात इलाही में सबसे अफजल आला हैं। आज़ाद मर्दों में सबसे पहले ईमान की दौलत से सरफराज हुए और नबी पाक की ज़ाहिरी हयात में 17 नमाजें पढ़ाने का शर्फ भी आपको हासिल हुआ। ये मर्तबा है सिद्दीक़ अकबर का। क्या बात है जनाब। अब बारी है जहलम वालों की। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का विसाल कब हुआ? नीज़ बवक्त विसाल आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल 13 हिजरी 22 जमादियुल उखरा 23 अगस्त 634 ईस्वी पीर और मंगल की दरमियानी शब मगरिब और इशा के दरमियान हुआ और आपकी उम्र मुबारक 63 बरस थी। क्या बात है। नमाज जनाजा किन्होंने पढ़ाई? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला। हजरत उमर फारूक ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है। सहाबा और अहले बैत का जिक्र हो रहा है। अमीर अहले सुन्नत ने बड़े प्यारे हमें नारे अता फरमाए हैं। आइए मिलकर नारे लगाते हैं। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, हजरत मौला अली जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। और अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम में, रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम में, ये आलम में है किसका मर्तबा? सिद्दीक़ अकबर का। ये आलम में है किसका मर्तबा? सिद्दीक़ अकबर का। गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फज़ल पाता है, खुदा फज़ल से
खुदा के फज़ल से मैं हूँ गदा सिद्दीक़ अकबर का। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए नाजरीन एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान अत्तारी स्पेन अंदलूसिया से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मकबूल आम सिलसिला मदनी चैनल का जारी सारी है। अल्लाह ताला तमाम टीमों को शाद आबाद रखे, बरकतें अता फरमाए। बिलखुसूस ज़ैनी आज़माइश की टीम को, हमारे प्यारे रुकन शूरा, अल्लाह ताला आपको आपकी पूरी टीम को सेहत व आफ़ियत वाली, सलामती वाली, दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। बिलखुसूस कल के जो प्रोग्राम के अंदर आई सब आपकी एक्टिविटीज़ आपकी माशाल्लाह चुस्ती वगैरह देखी गई। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। इतनी लंबी ट्रांसमिशन आपने की, आज एक मरतबा फिर आप लाइव प्रोग्राम में हाजिर हैं। जैसे ऐसा बिलखुसूस आप प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग करके आप चले जाते हैं तो बाद में चलें जनाब, अगली बात शायद कट गई, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई की और बरकत अता फरमाई। अगली कॉल दीजिएगा। मैं हूँ दयान अत्तारी। मैं हूँ गुलाम हो दत्तारी। हम दोनों भाई हैं तौसा से। हम आज ज़हनी आज़माइश का कलाम सुनाएंगे। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल को रोशन करे अब गीना चलो। इल्म का नूर है तुम भी भर लो सराफ़े मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। आइए नाज़रीन चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 22 नंबर जहलम के हैं, 24 नंबर अटक के हैं, 2 नंबर से अटक वाले आगे हैं, मगर अभी वक्त काफी बाकी है। अगला सेगमेंट है क्या आया क्या गया। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। दोनों टीमों ने गौर से देखना है। पहले बारी अटक वालों की है, देखिए क्या है जो आ भी रहा है और उसके बाद जा भी रहा है। गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ। गौर से, आज कुछ नया भी हो सकता है। और पसीना चलो चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप। बताइए कौन सी किताब है जो ऐड हुई है। गौसे पाक का शौक़ इल्म दीन। क्या ये जवाब दुरुस्त है? गौसे पाक का शौक़ इल्म दीन। जी जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब मैं इस किताब का तारुफ पेश करूंगा। बड़े गौर से दोनों टीमों ने सुनना है, क्योंकि इसी से ही फिर सवालात भी होंगे। गौसे पाक का शौक़ इल्म दीन, इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे गौसे पाक की इल्मी शान व शौकत। गौसे पाक ने बड़े मुश्किल वक्त में बड़ी मेहनत और लगन के साथ इल्म दीन हासिल किया। आप खुद फरमाते हैं, मैं अपने तालिब इल्मी के ज़माने में असातिज़ा से सबक लेकर जंगल की तरफ निकल जाया करता था। फिर बयाबानों और वीरानों में दिन हो या रात, आंधी हो या बरसात, गर्मी हो या सर्दी, अपना मुताला जारी रखता था। उस वक्त मैं अपने सर पर एक छोटा सा इमामा बांधता और मामूली सी तरकारियां यानी सब्जियां खाता। कभी कभी ये तरकारियां भी ना मिलती, मगर मैं अपना मुताला जारी रखता। फिर नींद आती तो खाली पेट ही कंकरियों से भरी हुई जमीन पर सो जाता। इमाम इब्ने कुदामा हम्बली रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में हुजूर गौसे आजम के बारे में सवाल किया गया तो आपने जवाब दिया कि हमने आप रहमतुल्लाहि तआला की उम्र का आखिरी हिस्सा पाया और गौसे पाक के मदरसे में क़याम किया। हमारा इस तरह ख्याल रखा जाता कि कभी तो गौसे आजम अपने शहजादे हजरत याहिया को हमारी जानिब भेजते, वो हमारे लिए चराग जलाते। आप रहमतुल्लाहि तआला अपने घर से खाना भेजा करते। कुन जहन तालिब इल्म पर शफकत। मेरे मुर्शिद गौसे आजम का दीनी तलबा पर शफकत का एक पहलू ये भी था कि आप उनकी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज फरमा दिया करते थे। दुआए अत्तार या रब्बुल मुस्तफ़ा, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला गौसे पाक का शौक़ इल्म दीन पढ़ या सुन ले, इसे इल्म दीन हासिल करने का शौक़ और अमल की तौफ़ीक अता कर और माँ बाप समेत उसकी मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह। तो सब नियत करें, इंशाअल्लाह ये रिसाला हासिल करेंगे, इसका मुताला भी करेंगे इंशाअल्लाह। अपने तालिब इल्मी के ज़बान के मुतालिक गौस पाक क्या इरशाद फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने असातिज़ा से सबक हासिल करने के बाद जंगल की तरफ चला जाया करता था। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या
हवा तूफ़ान। मैं अपना मुताला जारी रखा करता था। उस ज़माने में मैं छोटा सा इमामा बांधा करता था और अपने पास तरकारियाँ रखा करता था और उन्हीं खाता था। और कभी तो ऐसा होता था कि वो तरकारियाँ भी मुयस्सर ना आती थी तो मैं कंकरों की ज़मीन पर भूखा सो जाया करता था। या आपने पहले से पढ़ा हुआ था या अभी सुना और उसका जवाब दिया? अभी सुने। कमाल है जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इमाम इब्ने कुदामा हम्बली की बारगाह में हजरत गौसे आजम के बारे में सवाल किया गया तो आपने क्या जवाब दिया? चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगी ना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम इब्ने कुदामा हम्बली फरमाते हैं कि हमें आखिरी उम्र में हुज़ूर गौसे पाक का जवार साहब मुयस्सर आया और जब हम आपके मदरसा में दाखिल हुए तो आप हम पर बड़ा शफ़क़त फरमाया करते थे और अपने बच्चों को हम की तरफ भेज दिया करेंगे और चिराग लेकर भेज दिया करते थे। आपकी ये भी बात बड़ी अच्छी थी कि आप कुन ज़ेन जो तालिब इल्म की उनकी जो गलतियाँ उनको नज़रअंदाज कर। चले जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। गौसे पाक का तलबा के साथ अंदाज कैसा होता था? गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कुंज़ तलबाए किराम थे, गौसे आज़म तलबा की गलतियों को माफ़ कर दिया करते थे, नज़रअंदाज कर दिया करते थे और जो कुंज़ तलबा थे उनका ज़्यादा ख्याल रखा करते थे। जनाब बाज़ औक़ात पहले वाले दूसरों का जवाब आसान कर देते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अमीर अहले सुन्नत ने रिसाला गौसे पाक का शौक़ इल्म दीन पढ़ने वाले को क्या दुआ दी? सब्ज़ गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक जो कोई 17 सफ़ात का रसाला गौसे पाक का शौक़ इल्म दीन पढ़ या सुन ले तो उसे इल्म दीन का शौक़ अता फरमा और माँ बाप समेत उसकी मग़फ़िरत फरमा। क्या बात है, इतनी प्यारी दुआएं अल्लाह के वली से मिलें तो फिर क्यों ना जनाब हम भी ये रिसाला पढ़ें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कमाल के लोग हैं जनाब, अभी सुनते हैं अभी याद कर लेते हैं। सबको अल्लाह पाक इल्म नाफ़े नसीब फरमाए। अब बारी है जहलम वालों की, कुछ दिखाया जाएगा क्या आया क्या गया। मदनी चैनल के प्रोग्राम लग रहे हैं, ये तो किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम हैं, बड़े प्यारे प्यारे प्रोग्राम हैं। कुरान टाइम। जी, इनका कहना है कि कुरान टाइम जो है ये पहले नहीं था और अब आ गया है और लगता तो यही है कि जवाब इनका दुरुस्त है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मदनी चैनल के नादरीन, आप भी किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम देखा करें, बड़े कमाल के प्रोग्राम हैं और बच्चों को दिखाएं और बच्चे जो हैं इंशाल्लाह उससे सीखेंगे भी, अखलाकियात भी उनके बेहतर होंगे, सुन्नतों पर अमल भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उन्हें नसीब होगा। बहुत खूबसूरत सेगमेंट इख्तिताम पजीर हुआ। आइए देखते हैं, एक बार फिर स्कोर बोर्ड की तरफ भी चलेंगे और अब वक्त हुआ है कि इंशाल्लाह पहले कॉल देते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल तारी है। मैं आरिफ वाला से बात कर रहा हूँ। मेरा हाजी अब्दुल हबीब अंकल से ये सवाल है कि मुझे ये शेर सुना दे जिसके अंदर लफ्ज़ महशर आता हो। अच्छा, मैंने सुनाना है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। के आंखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई। जनाब 28 नंबर हैं जहलम वालों के और 30 नंबर हैं अटक वालों के। जनाब बोर्ड्स अब यहाँ पर तशरीफ लाएंगे, रेडी हैं जी। हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है फैजाने फतावाए रज़विया। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। नाजरीन, ये फतावाए रज़विया कमाल का आला हजरत का शाहकार है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कितने फतावा और कितने सवालात के जवाबात इसमें दिए हैं। फतावाए रज़विया की जदीद एडिशन की कुल 31 जिल्दें हैं, 31 जिल्दें हैं, 31 इसके सब्जिए के वॉल्यूम हैं, 22,000 सफ़हात हैं और सुबहान अल्लाह 206 रसाइल हैं
और 6,847 6,847 सवालात के जवाबात दिए हैं, और कई सवालात के जवाबात तो ऐसे दिए हैं कि पूरी पूरी बुक एक सवाल के जवाब में लिख दी है। तो आज इंशाअल्लाह यूँ समझिए कि जो सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं ये उलमा के लिए, तलबा के लिए तो बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह इंटरेस्ट का बाइस होगा। आम आवाम भी सोचे कि मेरे रज़ा ने, आला हज़रत ने, ऐसी दुनिया आला हज़रत की दीवानी नहीं है, कलम उठाते थे तो शाहकार लिखते थे, तो आला हज़रत ने कैसे कैसे सवालात और कैसे कैसे मौजू के जवाबात में आपने पूरे पूरे रिसाले तहरीर फरमा दिए हैं। तो इंशाअल्लाह अब आज से ये सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं, और इसमें पहले नामों की दुनिया हमने किया था बोर्ड एक्टिविटी पर, और अब हमारा ये बोर्ड आप देख रहे हैं कुछ थोड़ा सा और इन्होंने खूबसूरत बनाया है। तो ये आला हज़रत के रिसालों के नाम होंगे यहाँ पर, और इन रिसालों के नामों के आगे इन्होंने लिखना है कि इस रिसाले का टॉपिक क्या है, मौजू क्या था, जिल्द नंबर क्या है, और रिसाला किस साल में लिखा गया। तो इस तरह फिर ये नंबर्स इन्हें मिलेंगे। दोनों टीमों से एक एक इस्लामी भाई आ जाएं, जहलम के इस्लामी भाई यहाँ आ जाएं और अटक के इस्लामी भाई यहाँ आ जाएं। इनके पास 2 मिनट का टाइम होगा। जी आ जाएं। ठीक है, इधर आ जाए ना, आप इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। आइए शुरू करते हैं। इन्होंने ये बोर्ड्स को कंप्लीट करना है, 2 मिनट का टाइम है, वक्त शुरू होता है अब। जनाब बहुत तसल्ली के साथ इन्होंने लिखना है अल हुज्जतुल फातिहा फाइहा लितीबी ताइनिल फात वल फातिहा। मुश्किल नाम भी हैं, मगर आला हजरत ने किस तरह इसको माशाल्लाह हम काफिया बनाया है, और फिर माशाल्लाह हम देखेंगे कि इसका आगे लिखेंगे भी, ये पता चलेगा कि इसके माना क्या है। अल हुज्जतुल फाइहा लितीबी ताइनिल वल फातिहा। वाह, तसल्ली से करना है। साल भी लिखना है, किस साल रिसाला लिखा गया था, जिल्द नंबर क्या है, रिसाले का मौजू क्या है। माशाअल्लाह ये वो कमाल का फतावा है जो इल्म के समुंदर हैं इसके अंदर। उलमाए किराम, तलबाए किराम, बल्कि जितने हाजरीन भी हैं उर्दू में है, इसको हासिल भी फरमाएं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम आपको बताएंगे कि फतावा रज़विया के लिए एक शानदार एप्लीकेशन भी बन चुकी है। एप्लीकेशन के जरिए भी पढ़ा जा सकता है। 31 वॉल्यूम है, लाखों लाख रुपए का काम जो है दावत इस्लामी हमारे लिए कितना आसान कर देती है, और वो एप्लीकेशन भी हम फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मजलिस से गुजारिश है उसका एक ट्यूटोरियल बना लें, फिर हम अपने नाजरीन को बताएंगे कि वो कमाल की एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड हो सकती है और उसका किस अंदाज से होगा। इसको सीधा भी कर लें बेटा, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको तमाम चेक भी कर लें। अभी आपके पास 25 सेकंड कम बेश मौजूद हैं, तो तसल्ली के साथ करें, गलती ना हो। हर गलती पर एक नंबर कट जाएगा। कोशिश करें कि 5 के 5 नंबर आप हासिल करें। जनाब 15 सेकंड बाकी हैं। अटक वालों ने तो कर लिया है, अब जहलम वाले भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब हैं। 7 सेकंड रह गए हैं, जल्दी कीजिएगा जनाब। 3, 2, अल्लाह अकबर, टाइम पूरा हो गया जनाब। आखिरी सेकंड पे जाके लगाया है, कभी उतारा है, कभी लगाया है, ठीक लगाया है या गलत लगाया है, ये वक्त बताएगा जनाब। आइए हम जरा इधर आते हैं और चेक करते हैं कि ये जो पहला रिसाले का नाम है, सुभान अल्लाह, और इसके माना क्या है ये भी हम समझेंगे। अब इसमें जो रिसाले का मौजू है, मुरव्वजा, फातिहा, सोयम, चहलम, बरसी वगैरह का सबूत। आला हजरत ने इस टॉपिक पर, इस रिसाले का नाम ये है, और इसमें टॉपिक ये है, जिल्द नंबर 9 में है, 1307 हिजरी में आला हजरत ने ये इसको लिखा है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, अब अगला है अल हरफुल हसनी फिल किताबती अलल कफन। अब इसमें कब्रों में शजरा रखने और कफन पर कलमा तैयबा और अहदनामा वगैरह लिखने का बयान। ये कंफ्यूज किया जाता है लोगों को। आला हजरत ने इसका जवाब लिखा। 9वीं जिल्द में ये रिसाला मौजूद है, बड़े जबरदस्त इसमें दलाइल दिए, और ये रिसाला 1308 हिजरी में लिखा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, अगला जो जबरदस्त रिसाला कौन सा है कि अन्नहील हाजिज मिन तकरार, अन्नहील हाजिज अन तकरारी सलातिल जनाइज, नमाज जनाजा की तकरार नाजायज है। सफा नंबर, ये वॉल्यूम नंबर 9 है, 1315 हिजरी में लिखा है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है मेरे रजा की, सुभान अल्लाह। औफल लुमआती फी अज़ानी यौमिल जुमा। अच्छा, अल्फाज भी बड़े हम काफिया। आला हजरत का कमाल देखें, जुमा के दिन अजान सानी मस्जिद से बाहर देने का बयान। 8वीं जिल्द में रिसाला मौजूद है,
1320 सने हिजरी में ये रिसाला लिखा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, अगला पांचवा सवाल क्या था इनसे, और वो पांचवा सवाल था अजलल इलाम अन्नल फतवा मुतलकन अला कौल इमाम। फतवा इमाम के कौल पर ही होगा। पहली जिल्द में है, 1334 हिजरी में ये फतवा लिखा। सुभान अल्लाह जनाब, अटक वालों ने 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब चलते हैं वाकेंट वालों की तरफ, सॉरी जेहलम वालों की तरफ। अब इनका जो पहला जो रिसाला जो यहाँ पर बोर्ड पर मौजूद है, दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, अनवारुल इंतिबा फी हिल्ली निदाई या रसूल अल्लाह, फी हल्ली निदाई या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहने के जवाज पर दलाइल। सुभान अल्लाह, 29वीं जिल्द में है, 1304 हिजरी में लिखा गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, अब अगला जो है अजहारुल अनवार मिन सबा सलातिल असरार, नमाज गौसिया के मुतालिक अहम निकात और पढ़ने का तरीका, 7वीं जिल्द में और 1305 हिजरी में इन्होंने ये लिखा है। जनाब, क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। अच्छा, अब अगला है आला हजरत का एक रिसाला खालिसुल एतिकाद, मसला इल्म गैब पर मुदल्लल रिसाला, 29वीं जिल्द और रिसाले का साल 1315 सने हिजरी। जनाब, इसमें गलती हुई है इनसे, 1328 सने हिजरी जो है आपने यहां लगा दिया, या आपने यहां लगाना था। अच्छा जनाब, अब जनाब शुमूल इस्लाम लि उसूल रसूल किराम, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन और आबा और अजदाद के मुसलमान होने का सबूत 30वीं जिल्द में है। यहां 1328 इन्होंने लिखा है। जिल्द ठीक थी, ये 1315। अच्छा, इन दोनों में यहां से इनसे मिस्टेक हुई है। अब आएंगे हम आखिरी, इर्तिफाउल हुजुब अन वजूही किराअतिल जुनुब, जुनबी के किरात से मुतालिक तहकीर, पहली हिजरी में पहले वॉल्यूम में है और 1328। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है जनाब। तो 5 में से 2 में इन्होंने गलती कर दी है, इसलिए इनके चूंकि बाकी चीजें ठीक थी तो आधा आधा नंबर इनका डिडक्ट करके 1 नंबर कम दिया जाएगा। इनको 4 नंबर दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये सेगमेंट करने का एक मकसद है। यकीनन ये इनकी जहानत का, इनके हाफजे का इम्तिहान तो है, मगर आप तक ये बात पहुंचाई जाए कि इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कितने बड़े आलिम दीन और कितने टॉपिक्स पर आपने फतावे दिए, और ये सिर्फ एक सवाल के जवाब में 1-2 सफ़ात नहीं है। इंशाल्लाह कल से हम आपको, मेरी मजलिस से गुजारिश है कि सफ़ात भी बताएं कि एक जनाब मसले पर कितने कितने सफ़ात तहरीर फरमाए। पूरी किताब और पूरे रिसाले तहरीर फरमा दिए। सुभान अल्लाह, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। तो तलबा ने और बाकी इस्लामी भाइयों ने, इस्लामी बहनों ने फतवा रज़विया को पढ़ना चाहिए। बेहतरीन तो यह है कि किताबी सूरत में हासिल करें, वरना अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो एप्लीकेशन, इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में उसका ट्यूटोरियल और उसकी तफसील बताएंगे, तो वो भी आप डाउनलोड करें और उससे हासिल करें। तो ये है मेरे आला हजरत की शान। अल्लाह पाक हम सबको इल्म नाफे नसीब फरमाए। चलते हैं इंशाअल्लाह इसके बाद वाले सेगमेंट की तरफ। दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब। वो इल्म की तूने शम्मा जलाई, वो इल्म की तूने शम्मा जलाई, अहले कदम तो अब तक है हैरान, अहले कदम तो अब तक है हैरान, कुर्बान तुझ पर मेरे अहमद रज़ा, अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह। जनाब, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद हसन नजरी है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मेरा आपका इसलिए सवाल था कि मैच का फाइनल किस दिन और कहाँ पे होगा, बराए मेहरबानी बता दें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। माशाल्लाह। ज़हनी आज़माइश का फाइनल की डेट तो हमने 20 दिसंबर डिसाइड कर ली है। शहर भी इस्लामाबाद अभी तक तो डिसाइड है, जो वेन्यू है कहाँ होगा एग्जैक्टली वो इंशाल्लाह करीब वक्त आने पर हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। चलते नाज़रीन, हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 32 नंबर है जहलम के और 35 नंबर है अटक वालों के। सेगमेंट का नाम है फैजान कसीदा बुर्दा शरीफ। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है।
नाज़रीन, वन ऑफ द ब्यूटीफुल कसीदा इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में शानदार ये कसीदा है। अल्लाह ने कैसी कबूलियत अता फरमाई है। इमाम बुसैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कैसे बारगाह के मकबूल शायर हैं कि इन्होंने ये कसीदा लिखा, और आज दुनिया का कौन सा कोना है, कौन सी कौम है जो झूम झूम कर कसीदा बुर्दा नहीं पढ़ती। और इंशाअल्लाह मैं मजलिस से गुजारिश करूँगा कि अगले 1-2 दिन में हम जब इस सेगमेंट को करें तो जब हमारी हाज़िरी हुई थी इमाम बुसैरी के दरबार में तो उस मंज़र को भी दिखाएं। और वाकई दिल की अजब कैफियत थी, बड़ी दिल की तमन्ना थी कि उस अजीम हस्ती के मज़ार पर हाज़िरी हो। तो इमाम बुसैरी ने नाज़रीन जब ये कसीदा लिखा ना तो आप पर फालिज का अटैक हुआ था और आपकी तमन्ना थी कि मैं जाकर ये कसीदा नबी पाक की बारगाह में सुनाऊं, मगर रात जब सोए तो प्यारे आका ख्वाब में तशरीफ़ लाए, आपके जिस्म पर हाथ फेरा तो आपकी बीमारी भी जाती रही और नबी पाक ने आपको एक चादर अता फरमाई। नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा, चादर कहते हैं बुर्दा, अरबी में बुर्दा कहते हैं चादर को। तो प्यारे आका ने चादर अता फरमाई। नॉर्मली ख्वाब में जो होता है जब आँख खुलती है तो वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, बहुत कुछ देखते हैं ख्वाब में, मगर इमाम बुसैरी की किस्मत पर हमारी जान कुर्बान कि जब वो सुबह उठते हैं तो वो चादर उनके कांधों पर मौजूद होती है। तो आज पूरी दुनिया में आप जब भी ये मौलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला कसीदा पढ़ेंगे तो पूछें ये कौन सा कसीदा है, तो पूरी दुनिया कहती कसीदा बुर्दा है, ये चादर वाला कसीदा है। तो सब ये मानते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम बुसैरी को जो चादर अता फरमाई वो सुबह उठकर भी उनके कांधों पर मौजूद थी, पर चादर ओढ़कर उन्होंने वो कसीदा पढ़ा। सुभान अल्लाह। अप्रॉक्सीमेटली 160 अशार हैं। बहुत सारे अशार तो हम सुनते रहते हैं मगर बहुत सारे अशार हम नहीं सुनते। तो हमने इस नीयत से इस सेगमेंट को शामिल किया कि उलमा कहते हैं जहाँ ये कसीदा पढ़ा जाता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। तो एक तो हम सब पर रहमतों की बारिश भी नाजिल हो और इसके अशार भी हम समझते जाएँ, इसकी बरकतें भी लूटते जाएँ। तो इंशाअल्लाह इस कसीदा बुर्दा शरीफ के अशार हम दोनों टीमों से पूछेंगे, मगर क्यों ना इसका जो पहला शेर शोरा आफाक जिसको फजीलत हासिल हुई ये मिल के पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जनाब पहला सवाल करेंगे अटक वालों से। महत्तनिन नुस्हा लकिन लस्तु अस्मउ इन्नल मुहिब्ब अनिल उज़ाली फी सममी। इसका तर्जुमा बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने मुझे बेगर्ज नसीहत की और मैं इसको सुनने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो आशिक होता है वो नुक्ता चीनी और आवाज़ से जो ना वो बहरा होता है। कौन सी आवाज़ से? एतराज की आवाज़ से। जनाब क्या खूबसूरत बात की है। नुक्ता चीनी करने वाले को समझाया है कि मुझे मेरे महबूब के ऐब ना बताओ, मुझे मेरे महबूब के बारे में डिस्टर्ब ना करो, क्योंकि जैसे इश्क होता है ना, वो इश्क जो आशिक होता है वो नुक्ता चीनी और एतराज़ की आवाज़ से बहरा होता है। तो नबी पाक से जब इश्क है तो मादअल्लाह उनके बारे में हम कैसे कोई बात सुन सकते हैं। तो कमाल का शेर है। अल्लाह पाक हमें भी नबी पाक से वालेहाना प्यार अता फरमाए, सहाबा और अहले बैत से और औलिया किराम से वालेहाना प्यार अता फरमाए। जो नुक्ता चीनी करें उनके नुक्ता चीनी सुनने से हमारे कानों को इस हवाले से बहरा कर दे। अब जनाब बारी है जहलम वालों की। वस्तफ्रिग़िद दमअ मिन ऐनी कदिम तलअत मिनल महारमी वल्लज़म वल्ज़म हिम्यतन नदमी। वस्तफ्रिग़िद दमअ मिन ऐनी कदिम तलअत मिनल महारमी वल्ज़म हिम्यतन नदमी। और आंसू को बहा इस आँख से जो हराम के मुशाहिदे से पुर हो चुकी है और शर्मिंदा होकर ऐसे बुरे अफ़ाल से परहेज़ को लाज़म पकड़। और आंसुओं को बहा आँख से जो हराम चीज़ों के मुशाहिदों से पुर हो चुकी है और शर्मिंदा होकर ऐसे अफ़आल
ऐसे बुरे अफ़ाल से परहेज़ को लाजिम पकड़ हमें याद दिला रहे हैं। इमाम बुसैरी समझा रहे हैं कि अपनी आँखों को हराम से नहीं भरना, और जो आँखें हराम देख चुकी हैं अब इन्हें पाक करना है तो आंसू बहाओ, नदामत के आंसू बहाएं, क्योंकि फिर इन आँखों ने प्यारे जलवे भी तो देखने हैं ना। अल्लाह हम सब के आँखों के गुनाह मुआफ़ भी फरमाए, हमारी आँखों को पाक भी फरमा दे, और हमें नबी पाक का जलवा भी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लौलल हवा लम तुरिक दमअन अला तलल वला आरिक़त लिज़िक्रिल बानी वल अलमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तुझे मोहब्बत ना होती तो तू टीलों पर जाकर आंसू ना बहाता और पहाड़ों बांध की याद से जागता रहता। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत है जो तुझे रुला रही है। अल्लाह हमें भी मोहब्बत और इश्क़ रसूल में आंसू बहाना नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कैफ़ तुनकिरु हुब्बन बाद मा शहिदत बिही अलैका उदूलुद दम'i वस्सक़मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू कैसे मोहब्बत का इनकार कर सकता है जबकि इस मोहब्बत पर तेरी अश्क बारी और कल्ब की बीमारी मोतबर शाहिद हैं। क्या बात है। नबी पाक से मोहब्बत ऐसी है, इसका इनकार कैसे हो सकता है जब आंखें बह रही हैं, कल्ब मुस्तरिब है। तो यही तो बता रहा है कि याद जाना ने दिल को बेकरार कर दिया है। क्या बात है इमाम बुसैरी की। अल्लाह हमें भी इमाम बुसैरी के सदके नबी पाक से सच्चा इश्क अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नाज़रीन, अब आखिरी सेगमेंट है जो ये फैसला करेगा कौन सी टीम आगे जा रही है, कौन सी टीम आज पीछे रह जाएगी। स्कोर बोर्ड दिखाइए, देखते हैं कि कौन कितना पीछे है। जी, आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून और 36 नंबर है जैलम के, 39 नंबर है अटक वालों के। 3 नंबर का फर्क है जो इस सेगमेंट में कम भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। सेगमेंट का नाम मिलकर लेंगे, सफर है। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब, अटक वाले जहलम जा रहे हैं, जहलम वाले अटक में आ रहे हैं, और अब सेगमेंट है अकेले जवाब देना है, मशवरा किसी से नहीं करना। 5-5 सवाल हैं, या तो सही कहना है या गलत कहना है। पहली बारी है अहमद रजा अटक से। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला को साहिबुल हिजरतैन यानी 2 हिजरतों वाला कहा जाता है। सही। हजरत मरियम के नाम पर कुरान में मुकम्मल सूरत है। सही। मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफा रज़ा खान साहब का नातिया दीवान दीवाने सालिक है। गलत। शबे बरात 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को होती है। सही। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने इस्लामी भाइयों को 70 नेक अमाल अता फरमाए हैं। जल्दी करें। हाँ जनाब, गलत कहा। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब बारी झेलम वालों की है। नाम है मोहम्मद सरफराज अत्तारी। अहसनुल विआ अली आदाब दुआ किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अमजद अली आज़मी हैं। सही। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों का दूर करना भी सदका है। सही। सबसे पहले सफा मरवा पर चक्कर हजरत बीबी हाजरा ने लगाए। सही। जब हजरत आदम जन्नत में थे तो अरबी जबान बोलते थे। सही। अमीर अहले सुन्नत की कुन्नियत अबू हिलाल है। गलत। जनाब, एक गलती आपने कर ली है। पहला सवाल का जवाब आपने गलत दिया था। मुफ्ती अमजद अली आज़मी की नहीं बल्कि गालिबन ये आला हजरत के वालिद साहब मौलाना नकी अली खान साहब ने लिखी है। जनाब, अब बारी है जुल्फिकार अत्तारी हैं, नाम आपका और अटक से ताल्लुक है। अरबी के हुरूफ तहज्जी की तादाद 19 है। गलत। इमाम गजाली का असल नाम अहमद है। गलत। गौसे पाक की वालदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। सही। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना उमर फारूक आज़म ये दुआ किया करते थे। सही। दलालुल खैरात इमाम बुसैरी की तसनीफ है। गलत। जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। इस बार अटक वालों की तैयारी जबरदस्त है। जैलम वालों की बारी है। मोहम्मद हुसैन हसनैन अत्तारी। नमाज ईद में 6 तकबीरें जायद होती हैं। सही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक मस्जिद की मजलिस की इब्तिदा की दुआ है। सही। आयतुल कुर्सी दूसरे पारे में है। सही। हजरत सैयदना वैसे करनी तबा ताबई हैं। गलत। हर रकत में 2 बार सजदा फर्ज है। सही। जनाब, आपसे गलतियां हुई हैं और 2 गलतियां हो गई हैं। अब बारी है अटक के इस्लामी बल्कि अटक वाले यहाँ है ना जी, हमजा की बारी है। सूरह नमल के दरमियान में भी बिस्मिल्लाह शरीफ है। सही। जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के हैं। गलत। बांग्लादेश का मदनी चैनल अलग है।
صحیح. حج ذوالحجۃ الحرام کے مہینے میں ذوالحجۃ الحرام کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے. صحیح. وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہنے سے جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. صحیح. جناب غالباً ایک غلطی ہوئی ہے حمزہ سے. جی ایک غلطی ہوئی ہے. اور اب باری آخری اسلامی بھائی ہیں جن کا تعلق ہے جہلم کی ٹیم سے. نام ہے ان کا اسماعیل اتاری. جبل نور جبل ہرا پہاڑ کا دوسرا نام ہے. صحیح. امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار مبارک بغداد میں ہے. غلط. کنڈوں کی نیاز شعبان المعظم کے مہینے میں کی جاتی ہے. غلط. امیر اہل سنت کے پیر و مرشد کا مزار مبارک جنت المعالی میں ہے. غلط. بعد مغرب 6 رکعتیں مستحب ہیں. ان کو اشراق و چاش کہتے ہیں. غلط. جناب ایک غلطی آپ کر گئے ہیں اور امام اعظم کا مزار مبارک بغداد ہی میں ہے. تو جناب ایک اچھے مارجن سے آج کا مقابلہ اٹک والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ 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 اللہ. جہلم والے پہلی بار اس مقابلے میں آئے, پچھلے سال کے ونر ہیں. دوبارہ تگڑی تیاری کر کے آنا ہوگا تاکہ آپ اگلی بار جب آئیں تو مقابلے میں آگے بڑھیں. اب جناب دونوں ٹیموں سے گزارش منچ پہ آگے تشریف لائیں. ناظرین وقت ہوا ہے. ایک سوال آپ سے کیا گیا تھا, اس کا جواب اور اس کی قرآن دازی. جی مدنی چینل کے ناظرین, سوال یہ تھا کہ مسجد عائشہ کہاں ہے؟ تو اس کا جواب ہے مکہ مکرمہ میں. ہمارے پاس جو نام آئے ان میں محمد حسنین شہزادہ بنت عبد المجید اتاریہ استا محمد بلوچستان, زبیر بن محمد حنیف کشمور سندھ, محمد امین غلام یاسین چشتی بورے والا, رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان, بنت اسد اتاری غلام مرتضی اتاری وہاڑی, بنت محمد اشرف اتاریہ گجرات, بنت منور پاک پتن, بنت شفقت اتاریہ فیصل آباد, بنت بلال اتاریہ لانڈی کراچی. انشاءاللہ عز و جل ان کے درمیان قرآن دازی ہوگی. اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا تحفہ فیصل آباد جا رہا ہے. بنت شفقت اتاریہ فیصل آباد سے آپ ہم سے رابطہ کیجیے, اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا. جی آج کا بیسٹ پرفارمنس کا جو ایوارڈ ہے, جو شاندار پرفارمنس دی ہماری اٹک کی ٹیم نے, ساری ماشاءاللہ زبردست تھے, مگر ماشاءاللہ احمد رضا اتاری بھائی کو ہم یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی جناب اب وقت ہوا ہے کوئز اپلیکیشن کی قرآن دازی کرنے کا. آپ سے سوال کیا گیا تھا, آئیے اس سوال کا جواب اور کون 5 خوش نصیب ہیں جن کی آئی ڈیز پر انعام بھیجے جائیں. آنکھوں میں انوار تھے, لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں, لے کے جنت میں نبی پاک نے کس صحابی کی قرات کی آواز سنی؟ درست تھا حضرت حارثہ بن نعمان. آئیے دیکھتے ہیں کن کو تحفہ جائے گا. جناب یہ 5 آئی ڈیز نوٹ کر لیں, اور آپ کا اگر آئی ڈی نمبر آ گیا ہے تو اوپر نمبر لکھا ہے, اس پر واٹس اپ کر دیجئے. ماشاءاللہ ایک آئی ڈی والے بھائی یہاں آ گئے ہیں جن کا یہ نام نکلا ہے, ان کو یہ تحفہ پیش کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. چلیں ناظرین, اب وقت ہوا ہے آپ کو بتانے کا کہ کل مقابلہ ایک اور ہے براہ راست کس ٹیم کا کس ٹیم کے ساتھ ہے. آئیے دکھاتے ہیں. مقابلہ اگر جیتنا ہے تو دینا ہوگا درست وقت پر درست جواب, کرنا ہوگا جلد بازی سے گریز. جیت ہوگی یا ہار, اسی کشمکش سے بھرپور سوال و جواب پر مشتمل پروگرام دیکھیے انشاءاللہ 5 نومبر 2024 پر روز منگل رات 9 بجے ذہنی آزمائش سیزن 16, جس میں ہوں گی پشاور اور منڈی بہاؤدین کی ٹیم آمنے سامنے براہ راست مدنی چینل پر.